एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य में राजनीतिक उबाल देखने को मिल रहा है। इसको लेकर तृणमूल और भाजपा आमने सामने है। हुगली जिले के डानकुनी में एसआईआर के डर से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। 60 वर्षीय हसीना बेगम कई दिनों से तनाव में थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। तृणमूल का दावा है कि एसआईआर के डर और मानसिक दबाव से उनकी मौत हुई, जबकि भाजपा ने तृणमूल पर नाटक करने का आरोप लगाया। इसी बीच तृणमूल विधायक रामेदू सिंगराय के विवादित बयान, एसआईआर से बचना है तो तृणमूल का झंडा उठाओ, पर राजनीति और गर्मा गई है। भाजपा के हुगली सांगठनिक जिला उपाध्यक्ष दिलीप सिंह ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और दोहराया कि नो एसआईआर नो इलेक्शन नीति पर कोई समझौता नहीं होगा। सुनिए क्या कहते हैं सांसद कल्याण बनर्जी। নামটা ছিল না, পরবর্তীকালে সব ভোটার লিস্টে নাম আছে। আমাকে একটা জাস্টিফিকেশন বলতে পারো যে 2002 এর পর সব ভোটার লিস্টে নাম আছে? আপনারা জানেন, যারা প্রেসের লোক আছেন, আপনারা কভার করে যতবার ভোটার লিস্ট পাবলিশ হয়েছে ততবার বুথ সংখ্যা বেড়েছে, এবং 2025-এও প্রপোজ বুথ সংখ্যা বেড়েছে। তাহলে বুথ সংখ্যাটাকে তুমি আজকের লিস্টের ধরে তুমি বুথগুলোকে ধরছো, আর ভোটারটার সময় বলছো 2002। এটা কি ইনকনসিস্টেন্ট নয়? চলো বলছিলাম দাদা, খুনি অমিত শাহ মুর্দাবাদ, খুনি চিফ ইলেকশন কমিশনার মুর্দাবাদ, 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 মুর্দাবাদ। नमस्कार। तारकेश्वर विधायक रविंदर सिंह रॉय वो जो वक्तव्य दिए हैं, पहली बात तो ये इनको ये नहीं पता है कि वो एक संवैधानिक पद पे हैं। एक विधायक होने के बावजूद वो जिस तरह का वक्तव्य रख रहे हैं, इसी से पता चलता है कि इनकी जो तृणमूल की गरिमा या तृणमूल पार्टी की नीति क्या है और उनका नियम क्या है। ये ना तो किसी नियम को मानते हैं ना किसी नीति को मानते हैं। इनसे उम्मीद भी क्या किया जा सकता है? जिनके सुप्रीमो बोल सकते हैं कि मैं पैर तोड़वा दूंगा और खून की नदियाँ बहेगी, तो ये ठीक ही बोले हैं कि अगर एसआईआर से बचना होगा तो तृणमूल का झंडा पकड़ना पड़ेगा। ये कहाँ का नियम है भाई? तृणमूल का झंडा पकड़ने से क्या एसआईआर आप होने नहीं देंगे? ये क्या आप में ये क्षमता है कि एसआईआर को आप रोक सकते हो? क्या आपकी जो सुप्रीमो सीएम साहिबा हैं वो क्या एसआईआर को या संविधान के किसी भी एक्ट को नहीं मानेगी? या क्या उनके अंदर में ये क्षमता है? किसी भी चीफ मिनिस्टर के अंदर ये क्षमता नहीं है। किसी भी एक्ट को अगर लागू किया गया है तो संवैधानिक पद पर रह के उस गरिमा को नष्ट करे, लेकिन ये करती हैं। इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद किया नहीं जा सकता। Tension for last 3 or 4 days. She maintains her livelihood by she is having 2 granddaughters. She, because of the provocation of the Bharatiya Janata Party and the Chief Election Commissioner, that whose names should not be there in 2002 list, they will not be included. And specific statement for the Amit Shah yesterday, that who has not born in West Bengal, they would not be voted in the coming voter list. She was under fear. She was under tension. She was telling everyone what would be happen to her. The person who is begging to everyone, from everyone, and maintains her livelihood, she spent 200 rupees for making xerox of all documents. And after making xerox of all documents, she found that her name was not there in 2002 list. And the later voter list, her name was there. Therefore, she was under fear that she may be pushed back. She may be treated as she was under fear, she was under tension. Last evening also she was telling to one old lady that what would be happened to her when her name was not there in 2002. And when the BJP people are holding out threats that they will be
thrown out from the West Bengal, she was thinking about that. Now under that tension, she became senseless. She was taken to the hospital, she was declared dead. This Ganesh Kumar, the Chief Election Commissioner, is provoking each and every people of the West Bengal. The BJP peoples are provocating. Ganesh Kumar has said that historian work will be done by him during this SIR. Yes, he had done it. He had already नमस्कार। देखिए, आज डानकुनी म्यूनिसिपैलिटी 20 नंबर वार्ड में एक महिला के मृत्यु के बाद जिस तरह से तृणमूल के नेता प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इससे स्वाभाविक समझ में आता है कि ये SIR को लेकर के कितना बड़ा छीछाल इधर करने वाले हैं बंगाल में। पहली बात तो ये है कि इनको ये समझ में नहीं आता कि संवैधानिक पद पे रहते हुए भी चीफ मिनिस्टर साहिबा के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में, उनके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मेयर, उनके भतीजे तक और उनके जितने भी काउंसिलर MLA हैं, अब कोई भी किसी भी तरह से अगर उनकी मृत्यु हो रही है तो उस पर भी ये खेला कर रहे हैं। वो सीधे बोल रहे हैं कि SIR सुन करके इनका मृत्यु हो गया। अब इनके समझ में ये आना चाहिए कि भैया SIR तो पहला बार नहीं हो रहा है, SIR तो पहले भी हुआ है, लेकिन आप लोग ये तृणमूल गवर्नमेंट, तृणमूल सरकार इतना ज्यादा बंगाल की जनता को पैनिक में क्यों डाल रही है? SIR तो अच्छा चीज है। एक जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, जिसको पूरा देश मान रहा है, जिसके हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर मान रहे हैं, ऑलरेडी ये बिहार में हो भी चुका है SIR संशोधन बिल है, ये हो ही सकता है। आज जो मर चुके हैं, अगर उनको इस बिल के माध्यम से ठीक किया जा रहा है, क्या खराबी है? जिनका पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो इसका फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, जिनका पूरा डॉक्यूमेंट्स है वो कर पाएंगे। जो भारतीय मूल के मुस्लिम हैं, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, वो उसको पूरा करेंगे। जो हमारे हिंदू माँ बहन बांग्लादेश से भी आई हैं, जिनको वहाँ से प्रताड़ित किया गया, जो भाग के आए हैं, हम लोग का जो CA है उसके माध्यम से उनको प्रमाणित किया जाएगा। ये तो बहुत सुंदर SIR वाला जो संशोधन बिल है, बहुत बढ़िया बिल है। लेकिन ये ममता बनर्जी सरकार, इनको अपना रोटी सेकना है। इनके जो घुसपैठिए जो इनके वोटर हैं, जो इनके 2 नंबरी वोटर हैं, जो इन्होंने बना के रखा है, इनके अंदर में डर है। अब ये माहौल को दूसरा रूप देना चाहते हैं, वो कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, क्लियर कहा है उन्होंने कि जिनका पूरा डॉक्यूमेंट्स है वो फॉर्म फिलअप करेंगे, जिनका नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। आज कोई भी व्यक्ति का 2 वोट कार्ड क्यों होगा? अगर 2 है तो एक बातिल होगा, एक चलेगा। ये तो सिंपल सी चीज है, बढ़िया चीज है। जो हमारे यहाँ पे पुराने मुस्लिम भाई बहन हैं, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स है, वो इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो वेल गुड है, लेकिन नहीं है तो उनको जाना पड़ेगा। तो इस चीज को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो इनकी पॉलिसी है ममता बनर्जी की, यहाँ के तृणमूल सरकार की जो पॉलिसी है कि ये 2 नंबरी वोट से जीतती हैं, उसी के आधार पे इनका इलेक्शन होता है। तो मैं क्लियर बोलना चाहता हूं कि कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है और किसी भी तरह का पैनिक होने का जरूरत नहीं है। सभी मैं बंगाल के नागरिक भाई से बोलना चाहता हूं, यहाँ के पब्लिक से और यहाँ के लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी तरह से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी हमारे हिंदू भाई बहन का नाम बातिल नहीं होगा, कोई भी जो हमारे भारतीय मूल के मुस्लिम है उनका नाम बाद नहीं होगा। जो यहाँ पे रोहिंग्या अनुप्रवेशी हैं, उनका नाम अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो बाद होगा, उनको कोई नहीं बचा सकता। और SIR जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि SIR के लिए सिंपल सा बात है, नो SIR नो इलेक्शन। इसका मीनिंग यही है कि अगर SIR नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा। जैसे ही विधानसभा का समय समाप्त होगा, जैसे विधानसभा भंग हुआ, रूल ऑफ प्रेसिडेंट हो जाएगा। सिंपल से बात है, रूल ऑफ प्रेसिडेंट के बाद SIR भी होगा और इलेक्शन भी होगा। उसके बाद जनता को जो चुनना होगा, जिस सरकार को